Hello students, myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor of Zoology at SMB Government PG College, Nathadwara. In the earlier video, we have studied about the characteristics of phylum Mollusca. In this video, we will study about classification of phylum Mollusca. Classification of phylum Mollusca. Mollusca classification is based on their symmetry, types of food, shell, mantle, gills, nervous system, muscles, and radula. Phylum Mollusca is classified into following 6 classes on the basis of above-mentioned characteristics. The first class is Monoplacophora, Amphineura, Scaphopoda, Gastropoda, Palacipoda, and the last one is Cephalopoda. मोलस्का का वर्गीकरण। मोलस्का प्राणियों में पाई जाने वाली सम्मिति के अनुसार तथा उनके भोजन, कवच, प्रवार, गिलों, तंत्रिका तंत्र, पेशियों तथा रेड्यूला आदि लक्षणों के आधार पर उन्हें 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन 6 वर्गों के नाम इस प्रकार हैं। पहला मोनोप्लेकोफोरा, दूसरा एम्फीन्यूरा, तीसरा स्कैफोपोडा, चौथा गैस्ट्रोपोडा, पांचवा पैलेसीपोडा और छठा सेफेलोपोडा। Class Monoplacophora. The word Monoplacophora is derived from 3 Greek words in which the first word is monos, which means one. The second word is plax, which means plate, and the third word is pherein, which means bearing. It means these are the animals which bears one plate in their shell. Body of these animals is bilaterally symmetrical with a dome-shaped mantle. They have flattened limpet-shaped shell which is spirally coiled and having protoconch at its tip. Foot of these animals is broad and flat. It is provided with 8 pairs of pedal retractor muscles. These animals have 5 pairs of gills for respiration, and gills are present in pallial grooves. Monoplacophores have 6 pairs of nephridia for excretion. Out of these 6 pairs, 2 of them are as gonoducts. Radula is present in the radular sac. The radula is meant for cutting the food. Intestine of these animals is much coiled. The heart of Monoplacophores is made up of 3 partitions in which 2 auricles and a single ventricle is present. The nervous system of these animals is provided with longitudinal, pallial and pedal cords. Their body is internally segmented and they are marine in nature. The example is Neopilina. मोनोप्लेकोफोरा के जो जीव हैं उनका शरीर द्विपार्श्व सममित तथा एक गुंबद रूपी प्रवार सहित होता है। चपटे लिम्पेट के आकार का सर्पिल रूप से कुंडलित प्राक्षंक युक्त कवच उपस्थित होता है। इनमें फुट या पाद चौड़ा होता है तथा चपटा होता है। साथ ही इसमें 8 जोड़ी आकुचक पेशियां उपस्थित होती हैं। श्वसन हेतु इनमें 5 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं जो कि प्रवार खांचों में व्यवस्थित रहते हैं। इन जंतुओं में 6 जोड़ी वृक्कक उत्सर्जन हेतु उपस्थित होते हैं। इन 6 जोड़ी वृक्कक में से 2 जनन वाहिनियों के रूप में कार्य करते हैं। रेड्यूला कोश में रेड्यूला उपस्थित होता है जो कि भोजन के रेदन का काम करता है। इनकी आंत्र अति कुंडलित होती है। इनका हृदय
3 खंडों से मिलकर के बना होता है, जिसमें 2 जोड़ी आलिन और केवल एक निलय उपस्थित रहता है। तंत्रिका तंत्र में अनुदैर्ध्य प्रवाह और पदिक रज्जु उपस्थित होती है। इन जंतुओं में मोलस्का के होते हुए भी आंतरिक विखंडन या सेगमेंटेशन पाया जाता है। अधिकांश जंतु ये समुद्रवासी ही होते हैं। उदाहरण नियोपिलीना। The second class of phylum Mollusca is Amphineura. The word Amphineura is derived from two Greek words in which the first word is amphi, which means both, and the second word is neuron, which means nerve. These animals have elongated body with reduced head. Radula is also present in these animals, and shell is having 8 dorsal plates. The foot is present on the ventral side of the body. The foot is large, flat, and muscular. Non-ganglionated nerve ring around the mouth with 2 pairs of interconnected nerve cords are present in amphineurans. Their head is very well developed with tentacles and eyes as sensory organs. In these animals, fertilization takes place outside the body, or you can say that fertilization is external. The development of these animals is indirect, in which life cycle completes with a larval stage. The larva of Amphineura is called trochophore. The examples are Chaetopleura, chiton, Chaetoderma, etc. एम्फीन्यूरा के जंतुओं में शरीर बड़ा किंतु सिर समानी होता है। इन जंतुओं के आहार नाल में रेड्यूला उपस्थित होता है, जो भोजन के रेदन का काम करता है। इनका कवच बाह्य कवच के रूप में 8 पृष्ठीय प्लेटों या कंटिकाओं के समान दिखाई देता है। इनका पाद अधर सतह पर उपस्थित होता है और पाद बड़ा, चपटा और पेशी युक्त होता है। मुख के चारों ओर अगुच्छित तंत्रिका वलय, जिसमें 2 जोड़ी परस्पर जुड़े हुए तंत्रिका रज्जु उपस्थित रहते हैं। इन जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है, अर्थात अंडाणु का निषेचन शरीर के बाहर पूरा किया जाता है। बाह्य निषेचन के पश्चात इनका विकास अप्रत्यक्ष विकास होता है, जिसमें एक लार्वल अवस्था उपस्थित रहती है और एम्फीन्यूरा के लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है। एम्फीन्यूरा के जीव समुद्रवासी जंतु होते हैं। उदाहरण कीटोप्ल्यूरा, काइटन, कीटोडर्मा, etc. The third class of phylum Mollusca is Scaphopoda. The word Scaphopoda is derived from 2 Greek words in which the first word is scapha, which means boat, and the second word is podos, which means foot. Scaphopods are commonly called as tusk shells. Their body is present within tubular shell, which is open at both the ends. These animals are adapted for swimming. No head is present in these animals. The mouth bears tentacles and eyes are also absent in these animals. The foot is conical in shape. Radula is present. No gills are present in these animals. Kidneys paired and gonad single. These animals are dioecious and the larval stage is trochophore larva. They are also marine animals. The example is Dentalia. स्कैफोपोडा शब्द का विकास ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के द्वारा हुआ है, जिसमें प्रथम शब्द स्कैफा है, जिसका अर्थ होता है नौका, और दूसरा शब्द पोडोस है, जिसका अर्थ होता है पाद। अर्थात इन जंतुओं में नौका के आकार का
पाद उपस्थित होता है। सामान्यतया इन स्कैफोपोड के जंतुओं को हाथी दांत या हृद कवची जंतु कहा जाता है। इनका शरीर एक नली के आकार के कवच के अंदर बंद रहता है और यह जो कवच है इनका वो दोनों सिरों पर खुला हुआ होता है। इन जंतुओं में सिर का अभाव होता है, स्पर्शक युक्त मुख और नेत्रों का अभाव होता है। इनके अंदर पाद शंकु आकार का होता है। पाद के द्वारा ये गमन करते हैं। इन जंतुओं में भी रेड्यूला उपस्थित होता है किंतु गिल्स का अभाव होता है। इन जंतुओं में उत्सर्जन हेतु युग्मित वृक्क पाए जाते हैं। जनन ग्रंथि केवल एक उपस्थित होती है। ये जंतु एक लिंगाश्रयी होते हैं और इनमें विकास अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात जीवन चक्र को पूरा करने हेतु लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। इनके लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है। स्कैफोपोडा के जीव समुद्रवासी जीव होते हैं। उदाहरण डेंटेलियम। The fourth class of mollusca is Gastropoda. The word gastropoda is derived from two Greek words in which the first word is gaster and the second word is podos. Gaster means belly and podos means foot. It means these are the animals in which foot is present on their belly. These animals are commonly called as snails and slugs. Shell may be present or absent in the body of gastropods. If it is present, it is in the form of univalve and usually coiled shell. These animals have well-developed head with eyes and tentacles. Radula is also present in gastropods. Foot is very large and flat and muscular. Most of the gastropods are found in seawater, some are found in freshwater, and few may be terrestrial inhabited. Torsion of the body mass at some time during development is seen among gastropods. The early embryo is symmetrical, but during development, the body twists, showing torsion so that the body becomes asymmetrical. The gastropods includes the largest number of mollusks. Examples are Pila, Cypria, which is commonly called as Cory, Helix, which is commonly called as garden snail, Aplysia, which is commonly called as sea hare, Doris, which is commonly called as sea lemon, Limnia, which is commonly called as pond snail, Planorbis, Patella, and Limix, etc. मोलस्का का चौथा वर्ग गैस्ट्रोपोडा है। गैस्ट्रोपोडा शब्द का विकास ग्रीक भाषा के दो शब्दों गैस्टर तथा पोडोस के द्वारा हुआ है। गैस्टर शब्द का अर्थ होता है उदर और पोडोस शब्द का अर्थ होता है पाद, अर्थात इनके पाद उदर पर उपस्थित होते हैं। सामान्यतया गैस्ट्रोपोडा के जीवों को घोंगे या स्लग्स कहा जाता है। इनके शरीर में बाह्य कवच उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। यदि इनमें कवच उपस्थित होता है तो यह कवच एक कपाटीय होता है एवं प्रायः कुंडलित होता है। नेत्रों एवं स्पर्शकों से युक्त सुगठित सिर पाया जाता है। इनमें इन जंतुओं में रेड्यूला उपस्थित होता है। इनका पाद बड़ा होता है तथा चपटा होता है एवं पेशी युक्त होता है। गैस्ट्रोपोडा के अधिकांश जीव समुद्रवासी होते हैं, कुछ स्वच्छ जल में निवास करने वाले होते हैं और कुछ स्थल पर निवास करने वाले जीव भी होते हैं। परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान इनके शरीर पुंज का घूर्णन होता है, जिससे इनकी प्राथमिक द्विपार्श्व सममिति को ये खो देते हैं।
भ्रूण की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उन अवस्थाओं में ही ये द्विपार्श्व सममित दिखाई देते हैं, किंतु जैसे जैसे परिवर्धन की प्रक्रिया होती है, परिवर्धन के समय घूर्णन हो जाने से वयस्क अवस्था तक पहुंचते पहुंचते इनमें जो सिमेट्री या सममिति है वो समाप्त हो जाती है और वयस्क असममित प्राणी की तरह दिखाई देने लगते हैं। गैस्ट्रोपोडा वर्ग में मोलस्का के सर्वाधिक प्राणी आते हैं। इनके उदाहरण हैं पाइला, जिसे घोंगा कहा जाता है, साइप्रिया, जिसे सामान्यतया कौड़ी कहा जाता है, हेलिक्स, जो कि गार्डन स्नेल के नाम से जाना जाता है, एप्लाइसिया, जिसे समुद्री खरहा कहा जाता है, डोरिस, जिसे समुद्री नींबू कहा जाता है, लिम्निया, जिसे कि पॉन्ड स्नेल, तालाब में पाए जाने वाले स्नेल के या घोंगे के नाम से जाना जाता है, प्लेनोर्बिस, पटेला, लैमिक्स इत्यादि गैस्ट्रोपोडा के अन्य उदाहरण हैं। The fifth class of phylum Mollusca is Pelecypoda. Pelecypoda is also known as Lamellibranchia or Bivalvia. The word Pelecypoda is derived from two Greek words in which the first word is pellicus, which means hatchet, and the second word is podos, which means foot. They are commonly called as bivalvia because their shell is made up of two valves. Body of these animals is laterally compressed. Head, tentacles, eyes, jaws, and radula are absent in pelecypods. Foot often hatchet-shaped and extending between mental lobes. Mostly they are filter feeders and usually they are dioecious. The development is indirect through larval stages, and the larva of Pelecypoda is known as Veliger larva or Glochidium larva. Most of the pelecypods are marine inhabited. Few of them are found in fresh water. The example is Unio, which is a freshwater mussel, Mytilus, which is a sea mussel, Pterido, Ansis, which is commonly called as razor shell, Solan, Austria, Pectin, Pinctada, which is also called as pearl oyster. Pelecypoda फाइलम मोलस्का का पांचवा वर्ग है। इन्हें लैमेलिब्रैंकिया एवं बाइवॉल्विया के नाम से भी जाना जाता है। पेलेसीपोडा शब्द का विकास ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है, जिसमें प्रथम शब्द पेलिकस है, जिसका अर्थ होता है फरसा। दूसरा शब्द पोडोस है, जिसका अर्थ होता है पाद। अर्थात पेलेसीपोडा के जंतुओं में फरसे के आकार के पाद पाए जाते हैं। सामान्यतया इन्हें द्विकपाटीय बाइवाल्विया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन जंतुओं की जो कवच है वो दो कपाटों के द्वारा बनता है। इन जंतुओं का शरीर लेटरली कंप्रेस्ड होता है, अर्थात पार्श्वीय रूप से संपीड़ित होता है। सिर पर सिर, स्पर्शकों, नेत्रों, जबड़ों और रेड्यूला का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। इनके पाद प्रायः फरसे के समान होते हैं और प्रवार पालियों के बीच में उपस्थित होते हैं। अधिकतर जीव निस्यंदन भोजी अर्थात फिल्टर फीडर्स होते हैं। सामान्यतया ये जीव एक लिंगाश्रयी होते हैं और इनका जो विकास है वो अप्रत्यक्ष विकास होता है, जिसमें लार्वा अवस्था के रूप में वेलिजर लार्वा अथवा ग्लोचीडियम लार्वा होता है। अधिकांश पेलेसीपोडा के जीव समुद्रवासी होते हैं। कुछ जीव अलवणीय जल में पाए जाने वाले भी हो सकते हैं। उदाहरण यूनियो, जिसे कि स्वच्छ जलीय सीपी कहा जाता है, माइटिलस, जो कि समुद्री सीपी कहलाता है, टेरिडो, एंसिस, सोलन, ऑस्ट्रिया, पेक्टिन एंड पिंक्टाडा। पिंक्टाडा वल्गैरिस वह सीपी है
जो मोतियों का उत्पादन करती है, इसीलिए इसे सामान्यतया पर्ल ऑयस्टर के नाम से भी जाना जाता है। The last and the final class of phylum Mollusca is Cephalopoda. The word cephalopoda is derived from two Greek words in which the first word is kephal, which means head, and the second word is podos, which means foot. The cephalopods are the animals in which the foot is present on the head. Body is bilaterally symmetrical and it is elongated dorsoventrally. The shell may be external, internal, or it may be absent. External shell is found in case of the nautilus. Internal shell is found in sepia and loligo, and the shell is absent in octopus. Distinct head and large with well-developed eyes are present in these animals. Foot as tentacles and siphon. Radula is present. These animals are dioecious and their development is direct. It means there is no larval stage in their development. These animals are marine and free-swimming individuals. Some cephalopods are the largest among invertebrates. In Cephalopoda, the head and foot region combined and modified into a structure which has eyes and 8 tentacles. Hence, they are given the name Cephalopoda or head-foot. Cephalopods are regarded at the top of the invertebrates' evolution in terms of learned behavior they exhibit. The examples of cephalopods are sepia, loligo, octopus and nautilus. मोलस्का का अंतिम वर्ग सेफेलोपोडा है। सेफेलोपोडा शब्द का विकास ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है, जिसमें प्रथम शब्द केफेल जिसका अर्थ होता है सिर और दूसरा शब्द पोडोस जिसका अर्थ होता है पाद। अर्थात इन जंतुओं के सिर पर पाद पाए जाते हैं। इन जंतुओं का शरीर द्विपार्श्व सममित होता है और पृष्ठ अधर रूप से लंबा दिखाई देता है। इनके शरीर में कवच बाह्य भी हो सकता है अथवा आंतरिक भी हो सकता है अथवा अनुपस्थित भी हो सकता है। बाह्य कवच नॉटिलस में पाया जाता है, आंतरिक कवच लॉलिगो तथा सीपिया में पाया जाता है और ऑक्टोपस में कवच अनुपस्थित होता है। इन जीवों में सिर स्पष्ट और बड़ा तथा सुविकसित नेत्रों सहित होता है। स्पर्शकों और साइफन के रूप में पाद पाए जाते हैं। इन जीवों के अंदर रेड्यूला उपस्थित होता है। ये जीव एक लिंगाश्रयी होते हैं तथा इनका परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार से होता है, अर्थात इनके विकास में कोई भी लार्वा अवस्था नहीं होती है। ये जीव समुद्रवासी या मुक्तप्लावी हो सकते हैं। इन जीवों में सिर तथा पाद मिल करके एक रूपांतरित संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं, जिस पर नेत्र तथा 8 स्पर्शक पाए जाते हैं। इसी कारण से इन जीवों को सेफेलोपोड या सिर पर पाद युक्त जीव कहा जाता है। सेफेलोपोडा के जंतुओं को इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी के जंतुओं के विकास के क्रम में सबसे अधिक विकसित प्राणियों के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन जंतुओं के द्वारा लर्न बिहेवियर प्रदर्शित किया जाता है। इन जीवों को कुछ एक्टिविटीज सिखाई जा सकती हैं। उदाहरण सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस एंड नॉटिलस। Evolutionary precursor of mollusks. A living fossil named Neopilina, discovered in 1952 from the Pacific Ocean, shows metameric segmentation, which is not a characteristic of mollusks. Neopilina has 8 pairs of muscles and 5 or 6 pairs of gills and 5 pairs of nephridia. Metameric segmentation and presence of trophophore larvae
in both phylum Annelida and Mollusca suggest that mollusks have descended from the annelids. Thus, the annelids are evolutionary precursor of mollusks. Neopilina is considered as a connecting link between Annelida and Mollusca, as this animal is having some of the characteristics which belongs to phylum Annelida and some of the characteristics which belongs to phylum Mollusca. मोलस्का का अग्रगामी विकास। सन 1952 में प्रशांत महासागर में एक जीवित जीवाश्म पाया गया जिसका की नाम नियोपिलीना है। नियोपिलीना द्वारा वास्तविक खंडीभवन प्रदर्शित किया जाता है जो कि मोलस्का का गुण नहीं है। नियोपिलीना में 8 जोड़ी पेशियां और 5 से 6 जोड़ी गिल्स तथा 5 जोड़ी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। वास्तविक खंडीभवन और ट्रोकोफोर लार्वा की उपस्थिति दोनों फाइलम्स अर्थात एनेलिडा एवं मोलस्का में पाई जाती है और उनके द्वारा ये निश्चित होता है कि मोलस्का का उद्भव एनेलिडा के जंतुओं से हुआ होगा। इसीलिए एनेलिडा के जंतुओं को मोलस्का का अग्रगामी प्राणी के रूप में माना जाता है। नियोपिलीना जिसे कि हम जीवित जीवाश्म कह रहे हैं, इसे एक संयोजी कड़ी के रूप में देखा जाता है जो एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच में संयोजी कड़ी के रूप में उपस्थित है। क्योंकि नियोपिलीना मोलस्का का होते हुए भी इसका शरीर खंडित होता है या खंडों से युक्त होता है जो कि एनेलिडा का लक्षण है और बाकी के जो इसके गुण हैं वो मोलस्का के समान दिखाई देते हैं। इसीलिए नियोपिलीना को एनेलिडा तथा मोलस्का की संयोजी कड़ी के रूप में जीवित जीवाश्म की तरह जाना जाता है। इसके साथ ही हम मोलस्का का वर्गीकरण पूरा करते हैं।